Dr. D.V. Singh, former librarian, University of Delhi, and all the dear participants, a very good morning to you all. I, Professor Preeti Mahajan, on behalf of the Department of Library Information Science, Punjab University, Chandigarh, and on my own behalf, welcome you all in the fourth webinar in the new series of the webinar entitled PUDLIS Webinar Series. The current series are being organized to reach out to the LIS students, research scholars, and the professional colleagues to enhance their professional knowledge and update them in the field. I now take this opportunity to introduce the speaker of the webinar today. We have amongst us Dr. D.V. Singh, who is presently working as library advisor in Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. Prior to this, he served as university librarian at two universities, in the University of Delhi and Kurukshetra University, and librarian Shri Ram College of Commerce, University of Delhi, and also the librarian of Malviya National Institute of Technology. He also served as president ILA during 2010 to 2013, senior vice president ILA 2007 to 2010, and general secretary 2002 to 2007. He also served as secretary, Delhi University Teachers Association. He has also been a member of National Book Promotion Council of the Department of Higher Education, Government of India, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, and Bureau of Indian Standards. He is a member of the Board of Studies in various universities. He has published about 40 research articles on various subjects relating to digitization, automation, IT, multimedia applications, management and transformational leadership in libraries, etc. Apart from being the editor-in-chief of 12 volumes, he has also been on the board of refereed business journal entitled Business Analysis and also the Journal of Indian Library Association. He has authored 7 books on academic library system. He has translated IFLA's public library guidelines and Bile-Bayasi course materials of IGNOU. He specializes on transformational leadership and change management. As a part of recognizing his services to the profession, he was awarded the Best College Librarian Award in 2000, Promoter of ILA Award again in 2000, Didwani Deshpande Best Academic Librarian Award in 2009, ILA Scholar Best Librarian Award in 2017, Satkal Best Librarian Award in 2018, amongst many more. Today, Dr. D.V. Singh would be speaking on New Educational Policy 2020. And without taking much time, I now hand over the proceedings to Dr. Singh, please. Dr. D.V. Singh. Thank you, ma'am. Madam Preeti Mahajan, Steve, नेहा और प्रीत, बाकी सभी प्रोफेशनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे एक ऐसे विषय पे बोलने का मौका दिया जो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आज तक ये हम नहीं तय कर पाए कि एजुकेशन में हम चाहते क्या है। 86 में जब कमेटी आई, बेसिकली उसके चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल थे, लेकिन जो करना धरना था सब पित्रोदा ने किया और उसमें एक बहुत बड़ा फोकस किया गया कि हम शिक्षा को रोजगार से जोड़ के आगे चलें। ये गलत सोच, दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती, ना हुई ना हो सकेगी जो 100% लोगों को रोजगार दे। लेकिन ऐसी शिक्षा हमारे पास रही है और जो सिद्ध कर चुके हैं कि वो 100% लोगों में विचार और संस्कार का प्रतिपादन कर सकते हैं, उसका बढ़ावा दे सकते। अगर हम अपने प्राचीन साहित्य में देखते हैं तो हमारे यहाँ वेदों में लिखा सा विद्या या विमुक्ते, वो विद्या है। शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा सा जोर से। थोड़ी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। फाइन फाइन। तो विद्या हमारे यहाँ वेद में सा विद्या या विमुक्ते, वो विद्या कर दे, 3 चीजों से मुक्त कर दे। जो हमारे दिमाग में मिथ्या धारणाएं हैं, जो हमने फालतू के नोशंस क्रिएट कर रखे, उनसे मुक्त कर दे और एक हमें अच्छा इंसान बना दे। अगर मैं पंजाब में से बोल रहा हूँ और मैं पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब को नहीं कोट करूँ तो ये मेरे पार्ट पे बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हमारे गुरु ग्रंथ साहब 356 पृष्ठ पे लिखा है, विद्या विचारित परोपकारी।
और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का जो मोनोग्राम है उसमें ये लिखा हुआ भी है, विद्या विचारित परोपकारी। विचारी विद्या का अर्थ है जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी, जिसे आजकल अंग्रेजी में लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, उसको अगर विकास नहीं हुआ तो फिर वो विद्या परोपकारी नहीं हो सकती, वो कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो विद्या स्वार्थी तो हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। और चाणक्य ने एक बात कही थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीन चीजें समाज को मिलनी चाहिए, समान रूप से मिलनी चाहिए और अच्छी मिलनी चाहिए। नहीं, अगर ये तीन चीजें समान रूप से और अच्छी नहीं मिलेंगी तो इसमें एक प्रॉब्लम पैदा होगी, चार समस्याएं खड़ी होंगी समाज में। जो राज्य को चलाने वाले लोग होंगे वो विचारहीन होंगे, उनमें समझ नहीं होगी, उनमें एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होगी। दूसरे, जो न्याय देगा समाज को, जो न्याय मिलेगा न्यायपालिका से, उस पर संशय बना रहेगा, और जो अपराधी है उसे कोई भय नहीं रहेगा, और प्रजा जो है इन सब चीजों के प्रति उदासीन, इनडिफरेंट हो जाएगी। और जब ये स्थिति पैदा होगी, जो आज हम समाज में स्थिति देख रहे हैं, फिर ये स्थिति पैदा होती है, तो इसका समाधान कहाँ से शुरू होता है? ये तो चीजें पैदा हो गई, इसका समाधान शुरू होता है एक ऐसी शिक्षा से जो एक आनंद को देने वाली हो, जो एक संस्कार को देने वाली हो, जो एक विचार को देने वाली हो। रोजगार तो अपने आप ढूंढ लेगा। इस अभी तक हम शिक्षा में कोशिश करते रहे, जॉब सीकर्स क्रिएट करने की कोशिश करते रहे, जो प्रोवाइडर्स की प्रॉब्लम रही, और जो प्रोवाइडर्स जब होंगे, जब शिक्षा संस्कार देगी, जब शिक्षा पर हम विचार करेंगे, विचार करके वो शिक्षा आगे बढ़ेगी, तो ये चीजें पैदा होंगी। मैं इसके इतिहास पे आऊं उससे पहले मैं एक बहुत बड़े विद्वान हुए, मैं उनकी चर्चा जरूर करूंगा। एक डॉक्टर DS कोठारी, ये पहले पे कमीशन के चेयरमैन थे, पहले शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, वहीं प्रोफेसर थे, और DRDO की स्थापना भी इन्होंने की। UGC के चेयरमैन रहे, और इनकी एक बहुत बड़ी सुंदरता इनके जीवन की ये थी, जब ये UGC के चेयरमैन थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास लेने आया करते थे। इन्होंने जो शिक्षा नीति हमको 64 से लेके 66 के बीच में तैयार करके दी, वो शिक्षा नीति बहुत ईमानदारी से लागू नहीं हो सकी। अगर वो ठीक से लागू की गई होती तो हमारा आज का जो परिदृश्य है शिक्षा का, जो यूनिवर्सिटीज का और स्कूल्स का, वो थोड़ा अलग होता। वो 68 में लागू की गई, लेकिन जब 86 में आई तो उसका दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने 64 से जो 66 के बीच में कोठारी साहब ने जो हमें ड्राफ्ट दिया था, जो पॉलिसी दी थी, उसको उसने लिंक नहीं पाते हमसे। उसका फिर थोड़ा सा बाद में 92 में एक और थोड़ा सा रिवीजन किया, बट वो ऐसा ही माना जाता है। इसके बाद बहुत 28 साल तक अगर हम 92 से काउंट करते हैं, कुछ खास विचार नहीं किया गया, और शिक्षा वो उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाई, केवल डाटा मगिंग अप का प्रोसेस चलता रहा। एक बार विवेकानंद से किसी ने पूछा, आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि डाटा मगअप करना और ये फैक्ट्स इकट्ठे कर लेना ये किसी स्टेज में लाइफ में हो सकता है, लेकिन विचार का सर्जन और सोचने की क्षमता ये प्रारंभ में शुरू होती है, बाद में दिक्कत पैदा करती है। तो शिक्षा वो जो हमें विचार करने के लिए प्रेरित करे, जो हमें जिम्मेदार बनाने के प्रेरित करे। रोजगार तो मिलेगा नहीं मिलेगा अलग इश्यू है, दे ही नहीं सकती कोई शिक्षा दुनिया में 100% लोगों को रोजगार। अमेरिका में नहीं दे पाई, जहाँ इतना रिचनेस है, वहाँ भी ठीक है, हमारे यहाँ रोजगार का परसेंटेज अब एबनॉर्मल सिचुएशन है, कम है, लेकिन क्वांटम बहुत ज्यादा है। हम 140 करोड़ में कैलकुलेट करते हैं, वो 40 करोड़ में कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी बनी, यह सुब्रमण्यम थे जो कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, बट वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को शायद पसंद नहीं आई या जो भी रही है। बट हाँ, सुब्रमण्यम की एक किताब जरूर है, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, वो उनके मेमोइर्स हैं, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, जर्नी फ्रॉम बाबूडम टू नेतालैंड, बेस्ट सेलर रही, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो मौका लगे इसको जरूर पढ़ना। तो ये जो एक स्थिति पैदा हुई, अब क्या किया जाए? तो श्री कस्तूरी रंगन जी जो हमारे स्पेस के इसरो के चेयरमैन थे, उनके उसमें एक कमेटी बनी, और कमेटी ने सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन करके वो 1 साल पहले पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ये इसका सबसे सुंदर जो क्वालिटी है, जो ब्यूटी है, जो एप्रिसिएबल है, वो ये है कि ये कमेटी की जो रिपोर्ट थी ये छुपाई नहीं गई, ये दिखाई गई, बताया गया। 1 साल का समय दिया पूरे देश को, आप इसमें डिबेट करिए। कोशिश यहाँ तक की गई है गांव के प्रधान के स्तर तक इसमें डिबेट हो, और उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई जुलाई में, 29 जुलाई को। अभी एक पॉलिसी है, ये कोई कानून नहीं है, इसको गवर्नमेंट की मर्जी आए वो अप्लाई करे, गवर्नमेंट की मर्जी आए ना करे, क्योंकि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, कि विजन डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने कैबिनेट में से अप्रूव करके, और जो पार्लियामेंट की एजुकेशन कमेटी उसको भेज दिया, अब वो इसे कब वहां से पास करके लेके आते हैं, क्या करते हैं।
दूसरा एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर साल 3 लाख स्टूडेंट हिंदुस्तान से विदेश में जाते हैं और उन पे ये मानना है, ये मैं जो कह रहा हूँ इसका एक आर्टिकल भी है जिसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंडिया ट्रेंड्स एंड प्रिडिक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज। 5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बच्चे एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते हैं और लेके आते हैं। और मैं भी बाहर गया हूँ, आप लोग भी जाते हैं, वहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, केवल एंड केवल एक चीज है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल। इंडिया में भी जब हम देखते हैं सीए को, तो सीए का क्वालिटी कंट्रोल है, कोई आज तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा उसके ऊपर सीए किया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वहां सब पास नहीं कर सकते। तो एक क्वालिटी कंट्रोल अगर हम मेंटेन करते हैं तभी जाके चीजें हल होती है। अब सबसे पहले शिक्षा नीति के दो मुख्य रूप से तो 4 हिस्से, बट 2 मानते हैं, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन पे इसमें बहुत फोकस किया गया और जिसकी बहुत बड़ी जरूरत भी है। उसका कारण है, एक मजाक भी है, स्कूल में ये स्थिति रही जब हम बच्चे थे, स्कूल जाने से बहुत डरते थे। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था, तो एक सज्जन एक बकरे को खींच रहा था और वो मिन मार रहा था। उसने कहा, पापा ये बकरा इतना क्यों रो रहा है, इसे ये क्यों? बोले, इसको ले जाएगा, इसको काटेगा, फिर मटन के रूप में बेचेगा। तो बोले, मैं तो सोचे से स्कूल ले जा रहा है। ऐसा भय हमने पैदा किया, स्कूल जाएंगे तो ये होगा, जबकि स्कूल ऐसा होना चाहिए, बच्चे सवेरे उठते ही कहे कि मुझे स्कूल भेजो। एक बार मैं यूके में था, मैं एक अपने दोस्त के यहाँ था, तो उसका बच्चा सवेरे उठते ही, और थोड़ी सी देर में, छोटा बच्चा था, 5 साल से भी कम होगा, वो लड़ने लगा, नो व्हाई आर यू कीपिंग मी एट हाउस, प्लीज सेंड मी टू द स्कूल। मैंने कहा, क्यों नहीं? बोला, आज छुट्टी है। मैं, फिर कैसे क्यों कर रहा है? बोले, इतना हैप्पी है, और ये नहीं, यहाँ का हर बच्चा इतना हैप्पी है स्कूल में कि वो घर में उसको चिंता ही नहीं है। अब हम बच्चा स्कूल से छूटता है, ऐसे दौड़ता है जैसे जेल से छूटा हो। तो इस फोकस को हमें देखना होगा और हमें बर्डन नहीं पैदा करना। कई जगह तो हम देखते हैं बच्चे का वजन कम और बस्ते का वजन ज्यादा है, तो हम उसे बर्डन कर देते हैं, उस फूल को बड़ा ही नहीं होने देते, तो सुगंध तो उसमें क्या आएगी। इस पे बहुत सारा फोकस किया गया है कि हम इसको देखें कि कैसे इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले मैं एजुकेशन पे आऊं, तो 2 विद्वान और हैं जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक का नाम है फ्रांसिस गैल्टन। ये डार्विन का सभी ने नाम सुना, उनका हाफ ब्रदर था, यानी इनके फादर की 2 शादी थी, दूसरी मदर से था, तो इसे हाफ ब्रदर बोलते हैं। तो गैल्टन बहुत बड़ा विद्वान था। आज हम जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स में यूज करते हैं रिसर्च में, ये उसी की देन है। जो आजकल हम फॉरेंसिक में जो हैंड प्रिंट्स लेते हैं और उससे मैच करते हैं, और बहुत सारा उसने काम किया। उसने हेरिडिटरी ऑफ जीनियस करके किताब लिखी, उसमें उसने बहुत कहा कि 8 साल तक जो बच्चे को हम देते हैं वही बाद में जाके बड़ा होता है, वही फूलता फलता, अलग से कुछ नहीं होता। तो जो पहले के 8 साल बच्चे के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो एक फॉर्मेटिव स्टेज है, और वो डे टू डे बेसिस पे 300% उसकी नॉलेज में, उसके समझ में एडिशन होता रहता है। अब उस समय अगर आप उसको तंग रखेंगे, उसको ठीक से शांति नहीं मिलेगी, उसको खेलना नहीं मिलेगा, उसको एक खेल में सीखना नहीं मिलेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एंगुलरिटीज आ जाएंगी, टेढ़ापन आ जाएगा। उसने ये बात कही। वो जेनेटिक्स पे उसने बहुत फोकस किया। लेकिन वहीं से एक दूसरे अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं, जेबी वाटसन, वो साइकोलॉजिस्ट थे, उसने दूसरी बात कही। उसने कहा, नहीं, वो बिहेवियरिस्ट थे, आप मुझे एनिमल दे दीजिए, मैं आदमी की भाषा बुलवा दूंगा, मुझे आदमी दीजिए, मैं उसे एनिमल की भाषा बुलवा दूंगा। उसने कहा, नहीं, बिहेवियर जो था, एनवायरनमेंट, उसने ज्यादा कहा कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जेनेटिक्स भी कितना अच्छा हो, अगर एनवायरनमेंट स्कूल का, टीचिंग का और समाज का अच्छा नहीं मिला, तो हो सकता है आप उतने अच्छे सज्जन ना बन सके, उतने अच्छे व्यक्ति ना बन सके। तो जब ये चीज स्टडी करी गई, तो देखा गया कि एनवायरनमेंट जो उसका जेनेटिक्स है, अगर दोनों को हम राइट ब्लेंड कर दे, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दे, तो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। तो वो इसमें ध्यान में रखा गया। ये स्कूल एजुकेशन में इस तरह का आया। इसके बेसिस में ये 2 लोग मुख्य रूप से हैं। तीसरा व्यक्ति है सिगमंड फ्रॉइड। वो भी यही बात कहता है जो गाल्टन कहता है लगभग, कि नहीं, हम बच्चे के है, अगर बच्चे के सैपलिंग, उसने वर्ड यूज किया, सैपलिंग के टाइम पे, यानी जब वो 5 से 8 साल के बीच में होता है, अगर उसको ठीक से एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको ठीक से पानी मिलेगा, अर्थात उसको ठीक से ज्ञान मिलेगा, समाज मिलेगा, और उसको खेलने का भी मौका मिलेगा, तो एक अच्छा इंसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोमेंट ने क्या किया। तीसरी बात, इसमें एक और बात कही गई है, यहाँ मैं करूंगा। एक प्रोफेसर सी के प्रहलाद, अभी 1.5 साल पहले डेथ हुए, इंडियन हुए हैं।
उनका भी इसमें एक बेसिस में इसकी थ्योरी में है, वो ये है, उन्होंने कहा था कि उनका तो कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ था लेकिन वो हर जगह लागू हो रहा है। जैसे नैश ने मैथमेटिक्स की थ्योरी दी थी, गेम थ्योरी, जो आज हर जगह लागू होती है। 58 में उसने दी थी, किसी ने पूछा नहीं, 92 में उसी पर उसे नोबेल प्राइज मिल गया। तो जैसे नैश की गेम थ्योरी है, आज वो हर जगह लागू हो रही, उसी तरह से सी के प्रहलाद ने कहा था, ये इस तरह से उन्होंने कहा था, बट आई विल टेल यू हाउ इट इज एप्लीकेबल हियर, कि जो 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 मनी है, जो वेल्थ है, ये पिरामिड के टॉप में नहीं है, पिरामिड के बॉटम में है। तो लोगों ने कहा ये मजाक कर रहा है, जिसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या खरीदेगा। उसने कहा नहीं, पिरामिड के बॉटम में जो है वही वेल्थ है, टॉप में नहीं है। और ये जब फार्मूला अप्लाई हुआ तो आज आपको 50 पैसे का शैम्पू का पाउच मिलता है, और रिक्शा वाला जो 2 रुपए कमाता है, हफ्ते में 2 बार वो भी शैम्पू से सिर धोता है, क्योंकि वो पाउच छोटा कर दिया गया, उसकी बीच में चला गया। जब तक वो बोतल थी 500 रुपए की, 1000 रुपए की, तो वो टॉप थी और वो चलती थी, और उसका रिजल्ट ये निकला आज मार्केट में हर चीज का छोटे से छोटा पाउच लाने की होड़ लगी हुई है, और वो उसमें ज्यादा सेल करते हैं मुकाबले उस बोतल के। तो उसने कहा कि सोसाइटी को भी डेवलप करना है, तो सोसाइटी टॉप में हायर एजुकेशन को कुछ नहीं होने वाला है जब तक उसका जो बॉटम स्कूल है उसको आप मजबूत नहीं करेंगे, उसको आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी हाँ इस तरह से लागू हुई। एक व्यक्ति ये रहे, जब इन्होंने 4 चीजें डिस्कस हुई और ये आगे बढ़े इसमें, तो इसके बाद यहाँ स्कूल एजुकेशन की बात है। अभी तक हमारा जो मॉडल है वो सबके सामने 10+2, और उसमें भी हमने क्लासेज अजीब तरह की क्रिएट कर दी, टाइट कंपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। अब मैं एक उदाहरण दूं, बाद में उस बात पे आऊंगा। चेतन भगत आजकल काफी पॉपुलर है, उसने IIT से बीटेक किया और फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया, लेकिन लिखता तो उपन्यास है। तो चेतन भगत ने जब ये पॉलिसी आई, ये बात कही कि ये इस तरह की पॉलिसी मेरे समय पर आई होती तो मैं और अच्छा साहित्य लिखने वाला हो सकता था। तो खैर, ये जो स्कूल में इन्होंने अलग अलग स्टेजेस ली कि 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, सुनने में अजीब सा लगता है। कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया कि जब 3 साल का बच्चा देर से सोएगा, देर उठेगा, उसको उठते ही आप बस में बैठा देंगे या कार में बैठा देंगे, और उसका नींद पूरी नहीं हुई तो उसको वहां जाके टॉयलेट नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन की हैबिट डेवलप होगी, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसकी तरफ दूसरा दिया कि जब बच्चे को सवेरे 3 साल के भेजेगा तो पेरेंट्स जल्दी भी सोएंगे, उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरा आर्गुमेंट इसके फेवर में ये आया। तो 3 से 5 साल के बीच में जो बच्चे को पूरे नंबर सिखा देने की बात है, वो वहाँ खेलेगा, ग्रुप में रहेगा। इधर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात को भी इन्होंने ध्यान में रखा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं सिंगल चाइल्ड ठीक से खाता नहीं है, या तो बहुत ज्यादा खाता है, मोटा हो जाता है, या वो ठीक से नहीं खाता। और बोले पेरेंट्स, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट की एक ओपिनियन है, पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं, तो हम कहते हैं आप इसे ग्रुप में ले जाओ, बच्चों के सब कुछ खाएगा। और जब वो 3 साल का बच्चा अपना खाना लेके जाएगा, दूसरे का भी आएगा, या वहां पे मिलेगा, जो भी उसमें व्यवस्था होगी उसमें वो एक्सचेंज करेगा। उसमें 3 चीज डेवलप होंगी। को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत जो दिखाई नहीं देता, वो अपने आप दूसरे के सह अस्तित्व का, दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने का सिद्धांत, जो विचार उसमें डेवलप होगा। किसी को कपड़े झटकेगा, कोई उसके झटकेगा, अगले दिन फिर जाकर उससे दोस्ती करेगा। तो ये एक ऐसा विकास उस बच्चे का होगा 2 साल में कि उस पर बर्डन भी नहीं होगा। वो वही करेगा जो इंग्लैंड में एक बच्चे ने, मेरे जिसका मैं उदाहरण दिया, वो अपने पेरेंट्स से लड़ा, मुझे स्कूल छोड़ के आओ, क्योंकि उसे खेलने के लिए वो बच्चे चाहिएंगे, और खेल खेल में ही विकास हो जाता है। ये एक अच्छा तरीका रखा कि आप 3 से 5 तक ऐसा रखें। जब वो 6 साल में आएगा तो कक्षा 6 से 8 उसका एक उन्होंने स्लैब रखा है, तो वो 1 से 2 क्लास करेगा। जो टोटल स्लैब है वो उतना ही 18 साल का है जो 10+2 में था, लेकिन इसको अलग तरह से डिवाइड कर दिया। जब वो 8 साल का बच्चा होगा, जो अगर हम जेबी वाटसन की बात मान लें, या हम गाल्टन की बात मान ले, या सिगमंड फ्रॉइड की, जो भी है, तो उस 8 साल तक आते आते उस बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा। उसके लिए स्कूल एक सहज चीज होगी, वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, शेयरिंग और केयरिंग की कल्चर सीखेगा। वो केवल उपदेश से नहीं आ सकती, वो व्यवहार से आती है। डिमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन द टीचिंग इफेक्ट। के दिमाग में विकास होगा। ये एक अच्छा इसमें एजुकेशन पॉलिसी में लिया है। और जब वो बच्चा 8 साल आएगा तो तीसरी क्लास में भी आ जाएगा। 3 से 5 तक वो अपना खेले कूदेगा, कुछ नंबर सीख लेगा, कुछ अल्फाबेट किसी दिन सीख लेगा, उसको एक दिन हाथी सिखाना है, तो इस तरह से चलेगा। इसी बीच में मैं एक उदाहरण और देते हुए चलता हूँ। आपने अगर साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, एक जलोटा नाम के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और जिनका एक टेस्ट भी जलोटा इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। तो
उनके बारे में भी पढ़ा है, वो आर्टिकल भी मुझे कहीं पढ़ने को मिला। उनके पास एक सज्जन अपने बच्चे को लेके आए कि इनका कुछ करिए, और उस बच्चे ने 4 साल की उम्र में अपने दादा का मर्डर कर दिया था। ही वॉज वेरी एक्टिव। चक्कू उठाया, दादा ने कुछ किया, वो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको भोंक दिया, जब तक घर के लोग आए उनका एक्सेसिव ब्लडिंग से। कोर्ट ने छोड़ दिया, इसको कुछ पता नहीं, क्या करें इसका। तो उन्होंने जब उसको देखा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा आदमी बन सकता है अगर इसको आप संभालें। तो कुछ खर्चा होगा, उनका ऐसे खिलौने दो, ऐसे दो, डिटेल स्टोरी है, उसमें नहीं जाऊंगा। और बाद में जलोटा ने उसका क्रैक किया, वो बच्चा यूपी का चीफ इंजीनियर बना। उस समय एक ही चीफ इंजीनियर होता था। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, सामने एक पत्थर है, उसमें से अच्छे तरीके से अगर आप देंगे एक देवता निकल सकता है, उसमें गुरु नानक देव जी की मूर्ति निकल सकती है, और उसमें से रावण भी निकल सकता है। जहाँ तक शिक्षा विचारित थे उपकारी, रावण से ज्यादा शिक्षा तो मुझे नहीं दिखती किसी के पास होगी, लेकिन विचार नहीं किया था, उसको एनालाइज नहीं किया था, इसके चलते विनाशकारी हो गया। इसीलिए गुरुजी ने ठीक कहा कि शिक्षा पे विचार करिए, उसका मंथन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और उसको जीवन में एसिमिलेट करिए। विचारी विद्या का मतलब है एसिमिलेशन ऑफ द नॉलेज आप करिए, और तब आप आगे बढ़ेंगे तो कल्याणकारी होगी, नहीं तो वो वजन हो जाएगा। जैसे गधे की पीठ पर वेद लाद दो, गुरु ग्रंथ साहब भी ला दो, बाइबिल भी ला दो, कुरान भी, और कोई ज्ञान की पुस्तक लगे वो भी ला दो, गधे को कोई लेना देना नहीं उस बात से, लेकिन लदी जरूर है। इस तरह दिमाग में लादने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ऋग्वेद में एक जगह स्वर्ण मनन निधिध्यासन, सुनो, सुनने से मतलब लेक्चर सुनना नहीं, पढ़ना भी सुनना है। मनन, विचार करो, उसको एनालाइज करो क्रिटिकली, एंड निधिध्यासन, उस पर फिर आचरण करो। अब क्या हो रहा है, तो हम क्लास में सुन लिए, रट्टा वट्टा लगा, जाके एग्जाम दे दिए, और विचार तो हुआ नहीं। तो विचार पे यहाँ पे काफी प्रेशर दिया गया इस पॉलिसी में। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पॉलिसी का पढ़ोगे, जो प्रेजेंट है तो 64 पेज का है, जो पहला डॉक्यूमेंट पब्लिक में गया था उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इन बातों को वहां जाके आपको पता चलेगा। जब वो कक्षा 8 बच्चा 6 से 8 में 2 क्लास करी, और जैसे वो 11 साल का गया तो वो 5 क्लास करते थे, और उस समय तक वो चीजों को 6, जैसे वो कक्षा 6 में आता है थोड़ा सा पकड़ना शुरू, थोड़ा सा उसका रेजिमेंटेशन का यहाँ वो करने की कोशिश की, और 11 से 14 के बीच में बच्चा 8वीं क्लास पास करता। 8वीं क्लास पास करते ही इन्होंने एक ग्रुप बना दिया 4 का। तभी इसको 5 3 3 4 5, 3 साल का बच्चा गया, 2 साल खेला कूदा, कुछ बड़े बहुत नंबरों पर सीख लिए। फिर वो जैसे ही 5 का हुआ तो फिर उसको उधर क्लास 1 2 में कर दिया, और उसके बाद फिर उसको ले जा करके 8वीं पास करते, 8वीं से 12वीं तक एक है। यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा जो दी गई है, जो दे देनी चाहिए थी पहले भी, कि कंपार्टमेंटलाइजेशन, टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, आपकी मर्जी है। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था, मैं पढ़ना भी चाहता था, लेकिन जिस सिस्टम में मैं था उसमें मैथमेटिक्स उस लेवल पर अलाउड नहीं, तो मैं तो रह गया ना उसके बिना। हो सकता है अगर मैं मैथमेटिक्स में ही गया होता तो मैं बढ़िया मैथमेटिशियन बन सकता था, संभावनाएं तो थी, तो संभावना ही समाप्त कर दी। तो यहाँ आकर के इन्होंने कहा कि कक्षा 12 तक आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट लीजिए, ये आपको लेने होंगे, और आपका +2 हो गया। वो इस सिस्टम से आगे बढ़ेगा। जैसे एक बार आइंस्टीन ने कहा था कि मछली पानी में बहुत माहिर है, बहुत सक्षम है, लेकिन वही मछली जब सड़क पे आती है फेल है। तो इसी तरह कोई व्यक्ति सोशोलॉजी में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम के कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से सोशोलॉजी नहीं जा सका। तो इस तरह की सुविधा इन्होंने यहाँ पे दे दी। एक इन्होंने एक लैंग्वेज यूज की, या एक कमेटी कही है, इन्होंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इनका ये कहना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात है, कि 85% जो है ना बच्चे का डेवलपमेंट तो वही हो जाता है, 300% डेली बेसिस प्लस 85% ऑफ टोटल डेवलपमेंट। वही बात आ गई जो गाल्टन ने कही, वो बात आ गई जो सिगमंड फ्रॉइड ने कही, कि वो सारा का सारा वहां होता है, बाद में तो उसमें विकसित होता है। तो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया, लेकिन इसको मीट आउट कैसे करें। तो यहाँ इन्होंने कहा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे इन्होंने कहा कि हमें एक एजुकेशन मिनिस्ट्रीज में एक कमेटी सेटअप करेगी जो इसको लेकर के आगे बढ़ेगी और इसके देखेगी ये कैसे होगा। दूसरा यहाँ एक बहुत बड़ा फोकस है कि 100% स्कूल में जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन होगा, 100% उसका हेल्थ कार्ड होगा, जो टाइम टू टाइम जो है चेक होगा, और अगर नहीं है तो वो किया जाएगा। अब ये नहीं पता है कि ये पेड होगा या गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ये थोड़ा बाद में पता चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। क्योंकि देश की एसेट यहाँ की बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ का डैम नहीं है, यहाँ का जो ह्यूमन है वो अगर हेल्थी है, स्वस्थ है,
और वो पॉजिटिव है, वो सबसे बड़ा एसेट होता है किसी देश का। नहीं तो ये टेररिस्ट हमारे देश में कहीं कहीं से आ जाते हैं तो ये बिगड़ी हुई मानसिकता बनी हुई बिल्डिंगें खराब कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इनका प्रयास है और ये करेंगे इसको, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा फोकस है स्कूल के लेवल पे कि 6 से 8 ईयर्स की एज में 90.9% लोग जो है रजिस्टर हो जाते हैं स्कूल में, लेकिन जब वो 9 से 10 की एज में जाते हैं उसमें 79.3% रह जाते हैं। जब वो 11 से 12 ईयर्स में जाते हैं 56.5% रह जाते हैं। ये जो ड्रॉप आउट है, ये ड्रॉप आउट रोकने की बात। और 6 साल से 17 साल के बीच में 3.2 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब 2.22 करोड़ तो 8-10 देश की जनसंख्या होगी यूरोप में, जितने हमारे यहाँ ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये देश के ऊपर एक कलंक की बात है और इसको इन्होंने मीट आउट करने के लिए कहा कि हम 2030 तक 100% एनरोलमेंट का हमारा टारगेट है और हम इसे ड्रॉप आउट को खत्म करेंगे। इसमें डिटेल में नहीं, बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत टाइम चाहिए, तो समय को ध्यान में रखते हुए ही मैं बात करूंगा। इसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अभी तक हम मिड डे मील दे रहे थे, अब इसमें नाश्ता भी ऐड करेगा। तो जब बच्चे को ठीक सा नाश्ता मिलेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन की अपनी कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी हैं, आगे भी होंगी, वो तो ह्यूमन जहाँ रहेगा कुछ उस तरह का रहेगा ही, लेकिन वो एक अच्छी सोच है जिसको ये करना चाहते हैं और जो करने के इनका टारगेट है। ये एक इसमें बहुत बड़ी बात होगी। अब एक बात आई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हालांकि किसी में हिम्मत नहीं हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई इस अंग्रेजी भाषा के दबदबे को खत्म कर देगा। यहाँ तो हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं अंग्रेजी में लोग, और जैसे ये पॉलिसी आई तो बड़ा उन अंग्रेजी बोलने वालों ने कि उनकी मोनोपोली है बड़ा कहा। अरे अंग्रेजी बोलने वाले तो इंग्लैंड में भी जेल में हैं। दुनिया के जो 20 टॉप कंट्री जिनकी इकोनॉमी डेवलपमेंट सबसे आगे, एक उनमें ऐसा नहीं जो किसी और देश की भाषा के सहारे आगे बढ़ा हो। आप चाइना जाइए तो चाइनीज में है, रशियन में है, जर्मनी में है, फ्रेंच में। आप देख लीजिए, एक भी ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया में कि जो दूसरे देश की भाषा की पीठ पे बैठ करके विकास की ऊंचाइयां छू रहा हो। और दुनिया में वो सबसे जो गरीब देश हैं, लेस डेवलप्ड हैं, वो सब के सब अंग्रेजी भाषा की पूछ पकड़ के डेवलप होना चाहते हैं। यहाँ महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश 1875 में उन्होंने भाषा के ऊपर एक बहुत अच्छा कोटेबल कोट है, मनुष्य को बहुभाषी होना चाहिए, यानी आदमी को मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा के अतिरिक्त और किसी भाषा की गुलामी कदापि नहीं करनी चाहिए। हम अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं। भाषा सीखिए, बहुत जरूरी है, ताकत है, लेकिन हम उसमें गलती क्या, गुलामी के स्तर तक चले गए, हम उसके ज्ञान के स्तर तक रहते तो कोई बात नहीं थी। आज आदमी, कई बार मैं देखता हूँ कॉन्फ्रेंसेज में अच्छी खासी पंजाबी बोल रहे, हिंदी बोल रहे, और जैसे माइक हाथ में आता उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोलने लगते। मैं आज तक ये रहस्य ही नहीं समझ पाया। बहुत साइकोलॉजिस्टों से भी पूछा ये हो क्या जाता है, तो इसका एक ही पता चला, उठा है, कहीं इन्फीरियरिटी है। और एडलर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उसने कहा कि कोई दूसरा तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, एक ही तो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर अप करने के आदमी सुपीरियरिटी क्रिएट करता, दैट इज द ओनली थिंग। अरे आपकी भाषा पंजाबी बोलिए, मजा आता है सुनने में, अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है उसमें, जब तक उसको समझने वाले हैं वहां पे चलिए। तो बहुभाषी होना चाहिए, ये ऋषि दयानंद ने कहा, लेकिन मातृभाषा को छोड़कर किसी भाषा की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा हम 3 लैंग्वेज फॉर, मदर टंग होगी, एक फॉरेन लैंग्वेज होगी, एक कोई इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे कई बार चर्चा होती है कि साउथ के लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ में कितनों ने तमिल सीखी है, कितनों ने मलयालम सीखी है, कितनों ने कन्नड़ सीखी है, कितने स्कूल में सिखाई जा रही है। तो आप आपके लिए वो सब कुछ करें, आप उसके लिए नहीं। आप इस नॉर्थ में, आप हिंदी भाषी क्षेत्र में, जिसमें पंजाब को भी मैं लगभग हिंदी भाषी मानता हूँ, वैसे तो हमारी पंजाबी है, लेकिन लगभग हिंदी भाषी मानता हूँ। चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये तो दिल्ली भी हिंदी में आता है, मध्य प्रदेश, ये तो सब हिंदी भाषी लोग हैं। इन्होंने ऐसी कौन सी भाषा सीखी जो अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त हो? किसी को मन हुआ हमारे जैसे को थोड़े से 2-4 सेंटेंस संस्कृत के सीख लिए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये जो बहुभाषा है, हमें मल्टी भाषा होने से ये हमारे देश को जोड़ेगी, और इसको कहते हैं लैंग्वेज डायस्पोरा। ये लैंग्वेज डायस्पोरा फिल्मों ने भी किया है। आजकल साउथ पे जो लोग हिंदी के नाम पे चिढ़ते, हिंदी की फिल्में देखते हैं और वो फिल्मों के द्वारा चला गया।
तो ये जो भाषा का इन्होंने मामला किया है, ये बहुत अच्छी बात कही है और इसको हमें लागू करना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो, एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट है 1910-5 में आता गियर्सन का। ठीक है, उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उसके बाद कोई इतना अच्छा काम भी, इतना बड़ा काम भी नहीं हुआ। उसने भी एक बात कही कि अगर भाषा मरती है तो भाषा मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, भाषा में जो विजडम एंड नॉलेज आई है, विजडम एक दिन में नहीं इकट्ठी होती है, उसमें एक लंबा समय लगता है, लंबे एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसके साथ मर जाते हैं। अगर आप पंजाबी में, कई लोग कहते हैं अगर हम गुरुमुखी को जो है ना हिंदी स्क्रिप्ट में ले आए तो गुरुमुखी पॉपुलर हो जाएगी। मेरा उनको एक ही बात कहना, मराठी तो देवनागरी हिंदी की स्क्रिप्ट में है, नेपाली भी हिंदी की स्क्रिप्ट में, कितनी पॉपुलर हुई? ये गलत सोच है। स्क्रिप्ट बदलने से कोई भाषा पॉपुलर हो जाएगी, ये सरासर गलत है। भाषा पॉपुलर होगी उस ज्ञान को पॉपुलराइज करने से। इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ एक और किताब है, एक बिल ब्राइसन हुए हैं, बहुत बड़े थिंकर थे, उनकी किताब है मदर टंग। एक सेकेंड। मदर टंग में बहुत सुंदर किताब है। उसने एक बात कही है कि जो बच्चे के साथ क्या हो रहा है हमारे यहाँ देश में, उसी के आधार पर वो 18 घंटे घर में या तो पंजाबी में एंजॉय करता है या हिंदी में या किसी में, और 6 अंग्रेजी का लट पड़ता है। और उसकी पर्सनैलिटी ऐसे स्प्लिट होती है, वो बेचारा दुविधा में जीता रहता है कि ये बोलूं कि वो बोलूं, और वहां उसको डांट भी पड़ती है, व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। ये वो, उसको सहज बड़ा होने दीजिए। वो एक फूल है तो बड़ा होने दीजिए, उसमें से एक बीज निकलेगा, दूसरा फूल बड़ा होगा, उसमें से सुगंध निकलेगी, उसमें से सुंदरता निकलेगी। लेकिन उसकी पर्सनालिटी को ऐसे क्रश कर दिया हमने अंग्रेजी के नाम पे कि वो बेचारा बच्चा नन्हा सा, वो बेचारा खोया रहता है, किसी से कह नहीं सकता। बहुत से बच्चे डिप्रेशन भी चले जाते हैं। चाइल्ड डिप्रेशन एक अलग तरह की समस्या होती है। तो हमें जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। और छोटी सी बात इस भाषा पे मैं और कहूंगा, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे गुनार मिर्नार, उनकी पत्नी और उन दोनों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक किताब है, हम कैटलॉगिंग में कई बार क्लास में, किताब का नाम है एशियन ड्रामा, बड़ी फेमस बुक है। उसने एक बात कही कि इस हिंदुस्तान के विकास में सबसे बड़ी बाधा तो भाषा ही है। वो क्या कि एग्रीकल्चर जो भी रिसर्च होती है वो अंग्रेजी में होती है, उसका एंड यूजर या तो तमिल बोलता है या वो पंजाबी बोलता है या उसको ठीक से उसी को समझता है। लेकिन जब तक वो रिसर्च उसके पास जाती है, कभी ट्रांसलेट होते थे, तब तक वो ऑब्सोलीट हो लेती है। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे आप मॉडर्न नेशन को डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी रखी है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो केवल ट्रांसलेशन पे काम करेगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और बहुत अच्छा कार्य है, जिसको मैं एकदम सपोर्ट करता हूँ और मुझे अच्छा समझता हूँ। आप लोग भी इस पे करेंगे। मदर टंग में यही बात उसने कही, बिल ब्राइसन ने, कि हिंदुस्तान में के कॉन्टेक्स्ट में उसने कही कि बच्चे का 80 से 85% एफर्ट केवल लैंग्वेज सीखने में चला जाता है और 15% उसके पास कंटेंट के लिए बचता है। वो बस अंग्रेजी मीडियम के नाम पे पता नहीं क्या समस्या, अरे आ जाएगी 10वीं के बाद आ जाएगी। हम भी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जहाँ होती है, जहाँ जरूरत है नहीं बोलते, वजन नहीं ढोते। तो वो 85 से 90-80% उसकी ताकत केवल केवल अंग्रेजी पर लगती है। और क्योंकि उसके लिए वो सहज नहीं है, सरल नहीं है, पानी की तरह नहीं बह रही है, तो वो रट्टाफिकेशन करता है और आखिर तक वो रट्टा लगाते लगाते +2 में नंबर लेके, जब हम उन्हें श्री राम कॉलेज में देखते थे, एडमिशन 98 पे हुआ और जब फर्स्ट ईयर क्रॉस करते थे 50%, 52%, क्योंकि वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो लैंग्वेज का बर्डन होते हैं और उस भाषा में कुछ जान भी हाउ हाउ करते हैं और कुछ बात भी नहीं है उसमें। तो भाषा की बहुत अच्छी नीति लेके आए हैं, इसके लिए बहुत मैं इनको साधुवाद देता हूँ और बहुत अच्छा समझ। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके लिए टेक्स्ट बुक कहाँ से आएंगी, टेक्स्ट बुक कौन तैयार करेगा? तो इन्होंने जिम्मेदारी एनसीईआरटी को और एससीईआरटी को, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और एनसीईआरटी आप सब जानते हैं, उनके जिम्मे लगाई है। ये लोग डेवलप करेंगे, डिलीवर करेंगे, डेवलप करेंगे और ये प्रोवाइड करेंगे और सबको आसानी के लिए। अब एक और बहुत बड़ी समस्या से समाज जूझ रहा है, जिसको कह रहे हैं हम एड्रेस करेंगे, मुझे नहीं पता कितना हो पाएगा, ये तो जब लगेगा तब पता चलेगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा +2 के बाद। ये कह रहे हैं कि हम कोचिंग सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। कोचिंग कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, मुखर्जी नगर में कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट, या राजेंद्र नगर में। वो बच्चा बीए कर रहा है, वो बीए में क्या पढ़ रहा था, दोबारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में वही पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसमैच है, टीचिंग का की प्रॉब्लम है या क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। जहाँ जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप हो रही, समझ लीजिए वहाँ के स्कूल उतना ही ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, नहीं तो जरूरत क्या है।
तो ये कोचिंग का प्रोसेस बंद होना चाहिए और कोचिंग का काम जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ये स्कूल लेवल पर डेवलप हो। ये कह तो रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना आसान काम नहीं। वो एक अलग माफिया खड़ा हुआ है कोचिंग के नाम पे। और दूसरी बात, जब एंट्रेंस एग्जाम करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने कह दिया कि भाई हम उसको कि लोकल लैंग्वेजेज में रखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए फिर से कोचिंग पैदा हो जाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत डर है। और फिर ये कह रहे हैं कि हम इसमें एक नेशनल असेसमेंट सेंटर डेवलप करेंगे जो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस पे ध्यान देगा, जो इसे मॉनिटर करेगा, जो इसे आगे बढ़ेगा। अब कुल मिलाकर सब तो ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही अच्छा नहीं, एक छोटी सी एनेक्डोट बताता चलो। फिराक गोरखपुरी का नाम आपने सुना होगा, इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद में और बहुत बड़े पोएट थे। वो उनके मित्र थे जो वाइस चांसलर थे, अमरनाथ झा, श्री गंगानाथ झा जी के बेटे, दोनों ही बहुत बड़े स्कॉलर हुए। उनके पास अपने भाई को लेके गए कि इसको एडमिशन दे। ये तो 3rd डिवीजन है, कैसे एडमिशन देंगे? उसने कहा इसकी क्या गलती है, ये तो टीचर की गलती है, ये तो बहुत बढ़िया था। अब उसको शिल्पकार को और उसको जो जो मूर्ति बनाने वाला है उसको समझ नहीं आई तो पत्थर की क्या गलती है। खैर जिद विद करके उस समय वाइस चांसलर की ताकत होती है, एडमिशन दिलाया, उन्होंने उसे पढ़ाया, पेपर सेटिंग नहीं करी, इवेल्युएशन नहीं किया, और वही उसका भाई टॉप किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, वही से वो रिटायर भी हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब है टीचर का बहुत बड़ा रोल। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिसको हम शायद नहीं बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ पा रहे। महाभारत हम सब देखे हैं, इधर तो दोबारा देखे हैं, में एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एकलव्य। एकलव्य झांकता है, द्रोणाचार्य को देखता है कैसे सिखाता है, क्या करता है, द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के श्रद्धा भाव से वो प्रैक्टिस करता है और वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर होता है। अभी तक सारा का सारा फोकस टीचर के ऊपर था, टीचर ये टीचर वो। अब सारा फोकस टीचर से स्टूडेंट्स पे सीख। अब आप सोचिए अगर एकलव्य की मूर्ति बना देते, द्रोणाचार्य उसको पढ़ाने लगता, क्या कोई वहां धनुर्धर पैदा होता? अब टोटल फोकस इस एजुकेशन पॉलिसी में एकलव्य के हिसाब से प्रैक्टिस पे है, व्यवहारिकता पे है, वोकेशनल के ऊपर है, और जिम्मेदारी टीचर। अब जस्टिस JS वर्मा की एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 2012 में। उसकी रिपोर्ट कहती है उस समय, अब तो 10,000 BEd कॉलेज ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, जिनका काम केवल पैसे लेना और डिग्री बांटना है। ऐसे में एक स्टेट का क्या नाम लूं, नहीं तो आजकल मुकदमेबाजी है। वहां इस तरह के BEd कॉलेज है कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, नॉन अटेंडिंग, अटेंडिंग, नॉन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। आपको क्लास अटेंड करनी है तो इतनी फीस, आपको क्लास नहीं अटेंड करनी इतनी फीस, आपको एग्जाम देना है इतनी फीस, नकल तो उसको भी मिलेगी, और आपको एग्जाम भी नहीं देना BEd की डिग्री चाहिए इतनी फीस। ऐसा एक माफिया आप ही के आसपास की स्टेट में खड़ा हुआ है, और वो पूरे देश में समय 12,000 ऐसे इंस्टीट्यूट हो गई। इन पे लगाम लगना जरूरी है। वो क्या पढ़ाएगा जो खुद पढ़ के नहीं आया? जब मेरे पल्ले कुछ नहीं तो मैं आपके यहाँ लेक्चर क्या दूंगा? तो इस पे बहुत ज्यादा जरूरी देखने की जरूरत है। इस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसमें रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट में बहुत हमारा वो रोल रहेगा, और हम BEd को 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आएंगे जो सीधा जाएगा, उसका अपना पेडागोगी और जो जो चीजें उसमें होनी है, और एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम इसमें करेंगे जो इसके लिंग्विस्टिक कल्चर डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको कराएगी। उसका इनका एक कहना। अब मैं यहाँ आता हूँ एक बहुत बड़े, अभी पिछले इसी साल 2020 में 26 जनवरी को जगदीश सेठ नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मार्केटिंग के, वैसे तो उनको पद्म भूषण मिला है। उनका एक बहुत फेमस थ्योरी है जो बड़ी नेट पे भी मिल जाएगी और वो पढ़ने लायक है। बहुत बड़े आदमी है मार्केटिंग के। उसने कहा कि टीचर भी एक मार्केटियर है, वो भी मार्केटिंग करता है। उस ज्ञान का जो उसको मिला है, उस संस्कृति का जो उसको मिली है, और उसने यही बात कही जो और बहुत विद्वानों ने कही कि शिक्षा का उद्देश्य किसी को फैक्ट्स नहीं देना बल्कि जो विजडम है उसको ट्रांसफर करना है। और वो विजडम कैसे ट्रांसफर होनी चाहिए, जैसे ये तो संस्कृत में भी कहा तेलवत, उसने भी उसी बात को अंग्रेजी में कह दिया कि अगर आप एक बर्तन में सरसों का तेल लेके दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं तो धीरे से ट्रांसफर होता, आवाज भी नहीं होती, कभी आवाज नहीं होती। तो ऐसे ही ज्ञान का टीचर जो है बच्चों में ट्रांसफर करे। तो उसके लिए उन्होंने कहा टीचर में क्या होना चाहिए। उसने कहा, यहाँ उसने भी पिरामिड का ही उदाहरण दिया कि एक होती है पैशन, एक होती है कंपैशन, एक होता है अचीवमेंट। बोले 3 चीज है। टीचर में पैशन हो नॉलेज को देने की,
और उस बच्चे के प्रति उसमें कंपैशन हो। कंपैशन का मतलब दायित्व, माँ में बेटे के लिए कंपैशन है, वो दायित्व है। कंपैशन वर्ड यूज किया है इसने, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है माँ को कि मेरा बच्चा है, बेटा या बेटी, मुझे इसको अच्छा बनाना है, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये अच्छे से अच्छा इंसान बने, सबकी इज्जत करे, ये इज्जत पाए, और जब ये पाएगा मैं भी इज्जत पाऊँ। बोले टीचर में ये दो चीज बहुत जरूरी है, उसमें पढ़ाने के लिए तो पैशन हो, तो पढ़ाई में पैशन जब होगी, जब उसे पढ़ने में पैशन होगी, जो पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा क्या, वो क्लास से भागेगा। और स्टूडेंट्स के प्रति कंपैशन हो तो एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट होगा। ये जगदीश सेठ का फार्मूला इन्होंने यहाँ लेने की कोशिश की। अब इन्होंने एक बात पे बड़ा यहाँ कहा है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है हम 2030 तक ऐसा कर देंगे, वो चलता रहेगा। कोई नॉलेज सर्वकालिक नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑल द टाइम। जब मैं स्टूडेंट था कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं थी, जब मैं रिटायर हुआ कंप्यूटर के साथ रिटायर हुआ। तो नॉलेज तो जैसे रंगानाथन जी ने कहा, अगर आप पॉलीगोमिनल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, नॉलेज इज डायनेमिक बाय नेचर, इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल होने की तरह से बहुत तरफ से, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एम आई ऑडिबल? यस यस Yes, यू sir. आर। ओके फाइन, यहाँ थोड़ा लाइट चली गई इसलिए मैंने पूछा कोई नहीं गड़बड़ नहीं, तो नहीं। ऑडिबल है आप। ओके फाइन। तो ये रंगानाथन जी ने कहा कि नॉलेज मल्टी डायमेंशनल है, नंबर वन, डायनेमिक बाय नेचर, ये स्टैटिक नहीं हो सकती, और ये क्वांटिनम है। अगर आप किसी एक बड़े से परात, जिसको हम हरियाणा में इधर बोलते हैं, बड़े से बर्तन में पानी में एक चावल डालेंगे तो आप दूसरी तरफ उसका प्रभाव देख सकते हैं कि उसका स्पेस छोटा है। लेकिन अगर वही चावल आप तालाब में डालेंगे, दूसरी तरफ प्रभाव नहीं दिखेगा, ये इसका मतलब नहीं उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात कहीं भी किसी भी जगह कोई भी नॉलेज का विकास होता है, वो नॉलेज का विकास ना आइसोलेशन में होता है, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन आइसोलेशन में हो सकता है। इसलिए जब नॉलेज क्वांटिनम है तो मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रंगानाथन जी ने बहुत पहले दे दी थी प्रोलिगोमिना ने, जिसको आप यहाँ इन्होंने एडॉप्ट किया है। होता क्या है, कई बार लोग जिस सीढ़ी पे चढ़ते हैं छत पे, सबसे पहले उस सीढ़ी के लात मारते, कोई ये ना देख ले मैं इस सीढ़ी पे चढ़ा था। तो वो स्थिति है यहाँ। रंगानाथन जी को इन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन उनको करना चाहिए था। तो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी वर्ड हो गया पैशन, कंपैशन। उसमें कंपैशन हो, उसमें पैशन हो अपने काम के लिए, तो टीचर का अचीवमेंट होगा, और उसका प्रोफेशनल कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो, बी एड, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। समय के हिसाब से मैं इतना ही इसमें कहूँ। एक चीज पे यहाँ बहुत जोर दिया गया और जो बहुत जरूरी, वो है वोकेशनल एजुकेशन, और ये कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट। अब अगर आप डाटा को देखें, 19 से 24 साल की एज में इंडिया में 5% लोगों के पास वोकेशनल या स्किल है, बाकी डिग्री तो है। यूएस में 52% है, जर्मनी में 75%, और साउथ कोरिया में 96% के पास वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट है। अब स्किल डेवलपमेंट में क्या स्थिति हो गई आज, कभी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे नजर डालें कि हमारे पास जो रिमिटेंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मिडिल ईस्ट से जितना रिमिटेंस आता है वो 90% स्किल लेबर का है। कोई प्लम्बर का काम कर रहा है वहां जाके, कोई पढ़ाई का काम कर रहा है, इसी तरह की जो स्किल्स हैं। लेकिन वो स्किल किसी फॉर्मल सेक्टर से नहीं आई, इनफॉर्मल से आई। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाप ने कहा चलो भाई पढ़ाई का काम सीखो, तुम्हें पढ़ना वढ़ना आ गया है, बस हो गया काम। वो स्किल अगर हम स्कूल के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू थे, और वो वैसे ही दे, जैसे मैंने कहा कि सरसों को तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हुए उसकी आवाज भी नहीं होती और तेल ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से दे, सहज दे, उसे पता भी नहीं चले कि मुझे क्या दे दिया, और वो उसको ले ले। इसलिए इन्होंने कहा कि 10 दिन बिना बस्ते के, बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और वो किसी भी इंटरेस्ट में, कोई माली के पास अटैच करके देखेगा, कोई बढ़ाई के, जो जो उसका इंटरेस्ट होगा और उससे उसको पता चलेगा। अगर कोई बेटी है उसका मन करता है मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, तो होम लैब में, इस तरह का इन्होंने एक दिया। अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगी, इसके बारे में भानु प्रताप मेहता एक बहुत बड़े थिंकर हैं, विचारक हैं, वो उन्होंने एक बात कही कि कंटेंट इज एक्सीलेंट। जो पॉलिसी है बहुत बढ़िया पॉलिसी है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं कहने का मतलब है, जब इम्प्लीमेंट होगी उसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते। तो इन्होंने कहा कि हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट है 2025 तक हम 50% लोगों को वोकेशनल एजुकेशन से एक्सपोजर देंगे। फिर एक और कमेटी बना रहे हैं, ये नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वो हम डेवलप कर रहे हैं, और उस तरह से होना चाहिए। आज हमें प्लम्बर नहीं मिलता है, कंप्यूटर वाले मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं,
मार्केटिंग का काम करने वाले कि मार्केटिंग वाले नहीं मिलते। तो ये जो मिसमैच है सोसाइटी में, जिसकी सोशल कॉस्ट सोसाइटी बहुत हैवी वे में पे कर रही है, महिला सुरक्षित नहीं फील करती, उसकी चैन झपट लेते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पॉलिसी की कमी की वजह से ये एक सोशल कॉस्ट है जो सोसाइटी को पे करनी पड़ रही है। उस पर इसमें बहुत सारा ध्यान दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के बाद इन्होंने, अब मैं आता हूं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है हायर एजुकेशन, जिससे हम सब जुड़े हैं। मैं इससे क्या कैसे मैं बताऊं आपको, ये जो चीज आई है हायर एजुकेशन के लेवल पे, ये 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज इट इज प्रोफेसर दिनेश सिंह ने इम्प्लीमेंट कर दी। आई वाज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और ये एज इट इज, इसमें कोई कोमा और डॉट का भी अंतर नहीं है। और 1 साल ये कोर्स चला, लेकिन नई सरकार आई, नई मिनिस्टर आई, दादा विचारक थी, उसने आके इसे बंद। अगर वो कोर्स कंटिन्यू किया गया होता, आज तक उसमें जो पैदा होने वाली समस्याएं जिनको हम टीचिंग पेन बोलते हैं, वो सारे अब तक एड्रेस होकर के पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता, बहुत सहज होता। बट कोई बात नहीं, दूर देर से आए दुरुस्त आए, वो ही पॉलिसी एज इट इज है। वो क्या है, अभी क्या था कि मल्टी एंट्री प्रोसेस कुछ नहीं है। या तो आप +2 हैं या आप ग्रेजुएट हैं, बीच में तो कुछ नहीं है आपके पास। आपने 2 साल पढ़ाई करी अगर, और आप नहीं उसके बाद कंटिन्यू कर सके, बहुत से रीजन होते हैं, फैमिली परिस्थिति होते हैं, किसी के पास धन की कमी हो जाती है, अवसर की कमी होती है, बीमार बहुत है, और आपने 2 साल 1 साल करके छोड़ दिया, तो दैट इज वेस्ट। अगर मैं गीता की तरह से चलूँ तो वहां तो वेस्ट नहीं होता। भगवान से पूछा अर्जुन ने कि मैंने साधना की और प्राप्त नहीं कर सका तो मेरा क्या होगा। बोले अगले जन्म में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। तो मैं इसे अगर दूसरे शब्द में कहूँ, ये गीता का सिद्धांत है। आप 1 साल में अगर पास आउट कर लेंगे, जितना भी 1 साल करेंगे, आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सब इंट्रोड्यूस कर दिया था, इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया था। अगर 2 साल करते हैं आपको डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाएगा। 3 साल करते हैं डिग्री हो जाएगा। 4 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा था कि इसमें बहुत पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, प्रोजेक्ट एंड रिसर्च के प्रोग्राम रहेंगे और टीचर उनके साथ अटैच रहेंगे, तो आपको ग्रेजुएट विद रिसर्च कह सकते हैं या ऑनर्स कह सकते हैं। और फिर अगर आप एमए में जाते हैं, आप 1 साल में एमए एमएससी जो करना चाहे आप कर सकते हैं। और वहां भी ये लेटरल दिया था कि आपका एक तो कोर सब्जेक्ट होगा और दूसरा आप अपने इंटरेस्ट का ले सकते हैं। और वहाँ एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर भी डेवलप हुआ, छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स बच्चों को दी गई, उसके लिए पैसा अलॉट होता था, और उसमें से बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई जो अपने आप में बहुत लगी। तो वो 4 इयर्स कोर्स का ये है। दूसरा इनका एक यहाँ फोकस है कि जितनी ये बहुत किस्म के यहाँ पर जो हैं यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बोले केवल एक शब्द प्रयोग होगा, यूनिवर्सिटी। और ये टाइट कंपार्टमेंट सिस्टम नहीं होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ आर्गुमेंट कस्तूरी रंगन जी ने दिया कि हमारे यहाँ तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, ये सब पुरानी यूनिवर्सिटीज में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थी और अच्छा खासा डेवलपमेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन यूरोप में, अमेरिका में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। आप जाकर के आप +2 में भले ही साइंस नहीं पढ़े, आप तो भी वहां जाके डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू प्रूव योरसेल्फ एंड यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू दैट। तो ये जो दरवाजे बंद कर देते हैं, अब आपने तो मैथ पढ़ लिया, आप बॉटनी में नहीं जा सकते, और आपने तो ये कर लिया, ये नहीं कर सकते, सब खत्म कर दिया। आप किसी को बीएससी बीए एक्सेट्रा की डिग्री नहीं होगी, आपके पास ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री और डिग्री विद ऑनर्स रहेगी। और आप कभी भी उसमें क्रेडिट सिस्टम कर दिया, जो आपका क्रेडिट है वो सेफ रहेगा। अगर आपको एक कोर्स 80 क्रेडिट में करना और आपने फर्स्ट ईयर में 20 क्रेडिट आपने एक्वायर किए, तो आपको 20 क्रेडिट सीखे, 60 क्रेडिट आप पूरा करिए, तो आपको ऑनर्स के साथ मिल जाएगी। आप 1 साल पढ़ के फिर चले जाते हैं, आप पढ़े रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो ड्रॉप आउट्स है हायर एजुकेशन में, ये कम हो जाएगा। और इनका टारगेट भी है कि इस समय हमारे यहाँ 26.3% जो है ग्रेजुएट्स हैं, जिसको हम 2035 तक 50% पे ले जाना चाहते हैं। तो ये ड्रॉप आउट्स यहाँ कम हो जाएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ शुरू में एक मॉडल बना था। मैम टाइम जरा बता दीजिएगा, मुझे कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, टाइम नहीं फालतू हो जाए तो। आप कर लीजिए कंटिन्यू, नो इश्यूज। आ जा। तो वो जो हमारे यहाँ एक सोच आई थी शुरू में कि मास एजुकेशन, सोच होनी चाहिए थी मास एंड क्लास है। सबको एजुकेशन देना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें से जो क्लास जिनमें
अच्छी खासी कैपेसिटी है, वो ड्रॉप आउट ना हो और वो भी उसको ले। तो मास एंड क्लास एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी तक मास एजुकेशन का सबको पास कर दो। बीच में तो आया था कि 10th तक कोई एग्जाम नहीं होगा, तो 10th में बच्चा पहुंच गया, वो अपने वो 2 लाइन लिखना पढ़ना नहीं सीखता था, फिर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। तो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ठीक नहीं होता, दूसरों से भी सीख लेना चाहिए, यहाँ थोड़ा कमी रही है। तो इस एजुकेशन में एक बहुत बड़ा फोकस है मास एंड क्लास का। क्लास का ये मतलब नहीं कि किसी को बाहर कर दिया जाएगा, वो भी रहेगा, लेकिन जिनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको बढ़ावा दे करके और आगे ले जाना होगा। ये इसमें एक बड़ी बात है। अब एक चीज इन्होंने करी कि एमफिल को खत्म कर, नींव के पत्थर कोई देखता नहीं है, उनकी चर्चा नहीं करता है। आज के जमाने में तो सेल्फ मार्केटिंग का जमाना है, जितनी करो उतना अच्छा है। हमारे एक लाइब्रेरियन होते थे एपी श्रीवास्तव, वो 93 में रिटायर हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं सभी जानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी पैथोलॉजी ऑफ हायर एजुकेशन 1980। उस किताब में उन्होंने कहा था, तब तो एमफिल आ ही रहा था, बहुत जगह आया भी नहीं था, इंट्रोड्यूस हो रहा था, कुछ जगह हो गया था। उन्होंने कहा था इस सब काम है एमफिल इंट्रोड्यूस करना, ये खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसे खत्म तो कर दिया, रेफरेंस उसका नहीं था कि हमने एपी श्रीवास्तव की किताब पैथोलॉजी ऑफ हायर एजुकेशन नहीं पढ़ी है या वहां से रेफरेंस लिया। लेकिन वो लाइब्रेरी था जिसने सबसे पहले कहा था कि ये ठीक नहीं है, इससे कोई पर्पज सर्व नहीं हो रहा, अननेसेसरी की बात है। अगर आप डिटेल में जाना चाहे, किताब मिल जाएगी पैथोलॉजी ऑफ हायर एजुकेशन, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे लाइब्रेरियंस ने बहुत बड़े बड़े काम किए और करते रहे और करते भी रहेंगे। जैसे आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो सोमा शास्त्री लाइब्रेरियन था मैसूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, उसने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। आज भी कहीं छपता तो लिखा था सोमा शास्त्री वर्जन। अगर आप वो डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक नेमिचंद शास्त्री की किताब है भारतीय ज्योतिष, उसके 54 एडिशन आ चुके। उसके पहले एडिशन के पहले प्राकथन में लिखा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष विद्वानों का विद्वान है, लेकिन इसकी सर्वत्र ही अवहेलना होती है, ऐसा उसने लिखा है। बट वो चलता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। तो ये अब पीएचडी की बात आ गई। पीएचडी में क्रेडिट बेस्ड कोर्स तो करना ही होगा। ये अगर आप सोचें उसमें आप आगे आपको कब कोई कोर्स नहीं करना, नहीं, आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स तो करना ही होगा। और उसमें आपको क्या क्या पढ़ाना भी होगा। आपको जिस समय आप पीएचडी में होंगे, अपने सुपरवाइजर के साथ लग के आपको वहाँ एक्सपीरियंस भी लेना होगा, उसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ आवर्स में फिक्स करे जाएंगे। और इसमें एक होगा नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग नाम की एक बॉडी बनेगी, एस्टेब्लिश होनी है। रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक बॉडी बनेगी जो रिसर्च को मॉनिटर भी करेगी और उसको फंडिंग भी करेगी। एक सोच इसमें काम कर रही है। तो इसमें जो आप ये करेंगे, कोर्स करना है, उसमें आपको टीचिंग का है, एजुकेशन का है, पेडागोगी पे आपको काम करना है, और जो रिलेटेड कोर्स है पीएचडी का उस पर काम करना। आज की तारीख में हिंदुस्तान में लगभग 35,000 पीएचडी अवार्ड होती हैं, जिनमें 750 से 800 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है। लेकिन इनोवेशन के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस पे विचार करना होगा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ, सैमुअल जॉनसन का अगर आपने नाम सुना होगा, जिनकी दी हुई डिक्शनरी आज हम यूज करते हैं, पहले भी थी बट इन्होंने इसको सेव किया। उसके पास किसी ने अपनी किताब भेजी, उसने कहा इसका फॉरवर्ड लिख दीजिए, तो उसने फॉरवर्ड, दुनिया का सबसे अच्छा फॉरवर्ड है, उन्होंने कहा योर बुक इज गुड एंड ओरिजिनल। बहुत अच्छे शब्द यूज किए, गुड भी है, अच्छी भी है और मौलिक भी है। योर बुक इज गुड एंड ओरिजिनल, पार्ट ऑफ योर बुक इज गुड दैट इज नॉट ओरिजिनल, एंड विच इज ओरिजिनल दैट इज नॉट गुड, बट बुक इज गुड एंड ओरिजिनल। ये स्थिति पैदा हो गई है रिसर्च में। ओरिजिनल भी है रिसर्च और गुड अच्छी भी है, लेकिन जो रिसर्च का पार्ट अच्छा है वो उसका नहीं है, और जो उसका है वो अच्छा नहीं है। इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए इस पे काफी फोकस और कंसंट्रेट ये पॉलिसी कर रही है। अब यहाँ रिसर्च पे खर्च होने के बारे पे थोड़ा ध्यान दें। इन्होंने ये डाटा दिया है, इन्हीं का डाटा है कि जीडीपी जो हमारी है उसका 0.69% हम रिसर्च पे खर्च करते हैं। यूएसए 2.8% खर्च करता है, इजराइल 4.3% खर्च करता है, साउथ कोरिया 4.2% खर्च। तो इतना कम खर्च करके आप कौन सी रिसर्च को कहाँ लेके जाना, तो फिर इम्पोर्ट ही करो। इनोवेशन तो होगा नहीं, रिसर्च होगी तो हो जाएगी, इनोवेशन तो उससे आगे की चीज है। तो इनोवेशन के दो कारण रहे, एक तो एजुकेशन में कहीं स्पेस नहीं है, और पूरे पॉलिसी में लाइब्रेरी की चर्चा की गई है। तो यहाँ मैं एक बात और कहूँगा, एक छोटी सी कहानी है। एक बार नाव में कुछ लोग बैठे थे, तो एक
बहुत बड़ा विद्वान बैठा था। वो मल्लाह से जो नाव सेल रहा था, सेलर से पूछा उसने कि आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा? बोले नहीं। आपने वेद पढ़े? नहीं। आपको अंग्रेजी आते? हर चीज को ये पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार है। जब थोड़ा आगे चले, नाव में छेद हो गया, डूबने लगी। उसने पूछा और तो सब ठीक है, बताए महात्मा जी विद्वान, तैरना आता है कि नहीं आता? बोले अब आपकी सारी जिंदगी खराब है। अगर लाइब्रेरी को इन्होंने महत्व नहीं दिया जितना इस सबके लिए चाहिए, तो ये सारी पॉलिसी खराब हो जाएगी, ये सक्सेस नहीं होगी। आजकल कुछ हमारे टीचर लोग कहते हैं अब लाइब्रेरी की कहाँ जरूरत है, तो वो जरा एक वेबसाइट पे किताब पढ़िए, तो वो प्रोफेसर ने लिखी है, किताब का नाम है लिव टैग करके। उसने सारा दिया है कि इसकी जरूरत है। अगर नेट से लाइब्रेरी बंद होती तो अमेरिका की लाइब्रेरी तो 20 साल पहले बंद हो जाती। उन्हें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, और लाइब्रेरी तो रहेगी, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी है। इसके बिना कोई पॉलिसी सक्सेस नहीं हो सकती, कोई रिसर्च सक्सेस नहीं हो सकती। इस पे थोड़ा और ज्यादा फोकस ये करते तो बहुत ही अच्छा रहता। ये यहाँ पे कुछ चीजें और मैं कहना चाहूंगा। रेगुलेटरी सिस्टम हायर एजुकेशन में ये लाना चाहता। 3 चीजें उन्होंने कहा कि अभी क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया कुछ बॉडीज के हाथ में, जैसे एआईसीटी के हाथ में, कुछ यूजीसी के हाथ में, और कुछ थोड़ी बॉडी है उनमें दूसरे। और वो जब पावर कहीं कंसंट्रेट होती है तो दूसरे के साथ क्लैश तो स्वाभाविक है। जब मैं बस में बैठ करके 3 सीट पे पैर फैला के बैठूंगा तो दूसरे को बैठने तो नहीं दूंगा, तो वो भी तो अपना स्पेस मांगेगा। तो उसने कहा कि पावर कंसंट्रेशन, पॉलिसी कह रही है कि जो रेगुलेटरी बॉडी थी उनमें पावर कंसंट्रेशन होने से बहुत हैवी पावर कंसंट्रेशन हो गया, और उस हैवी पावर कंसंट्रेशन होने की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गया। अब जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, पावर कंसंट्रेशन हुआ, और उस कॉन्फ्लिक्ट के नुकसान की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रही, न यूजीसी को अकाउंटेबिलिटी। 5 डिग्रियां बढ़ रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर करिए डिग्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वो अकाउंटेबिलिटी को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI होगी, जो एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंडर में लोग काम करेंगे। और उसमें कहा कि 4 वर्टिकल्स यानी 4 पैरेलल और बॉडीज होंगी, जैसे नेशनल हायर एजुकेशन ऑन रेगुलेटरी काउंसिल होगी। एक वर्ड इन्होंने बड़ा अच्छा यूज किया, देख कहां तक इंप्लीमेंट होता है, लाइट एंड टाइट पॉलिसी। रेगुलेशन बहुत कम होंगे लेकिन वो लेटर एंड स्पीड में 100% अप्लाई किए जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। कितना होता है ये भविष्य बताएगा। एक नेक, नेशनल जो नैक है आजकल, ये नैक तो पता नहीं कैसी नैक है, नैक आके पकड़ लेती है यूनिवर्सिटी का और फिर इनको सी ग्रेड भी नहीं देती। तो लेकिन इन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन काउंसिल होगी, एक हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होगा जो अलग पैसा देगा। ये कुछ इस तरह का पैटर्न है, जिसको मैं मजाक में ये कहता हूँ कि रिपोर्ट तो SHO लिखेगा, जज जो है उसमें तय करेगा सजा देनी कि नहीं देनी। अगर SHO को ही सजा और रिपोर्ट दोनों का अधिकार दे देंगे, पता नहीं किसका क्या कर देगा। तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि SHO के हाथ में ही सजा थी, SHO के हाथ में ही जो है रिपोर्ट। तो वो थोड़ा इन्होंने डिवाइड किया कि ग्रांट कोई और देगा, उसका असेसमेंट कहीं और होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की बात है। फिर उन्होंने एक और बॉडी कही है, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी, जिसका जो लर्निंग आउटकम्स को ऑडिट करेगी, देखेगी कितना लर्निंग आउटकम्स हो रहा। ये इनकी बात। कुछ बॉडीज हैं जिनको उन्होंने कहा ये ऐसे ही रहेंगी, लेकिन इनका जो है ये एज ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हो जाएंगी, जैसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, PCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इससे तो कुछ अभी तक स्टैंडर्ड सेट हुआ नहीं है। टीचर BEd एजुकेशन का जो हाल बेहाल है, इससे तो नहीं हुआ है। अब भविष्य में ये क्या करेंगे इनको पता होगा। एक होगी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, ऐसे इन्होंने कहा NCVT एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी बॉडी रहेंगी, लेकिन ये बॉडी जो है स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेंगी, अब ये मॉनिटरिंग का काम नहीं करेंगे। इस तरह से इन्होंने इस पूरी एजुकेशन में अपनी बात कही है। और कुछ इश्यूज इन्होंने कहे कि भाई जैसे फाइनेंस है और इम्प्लीमेंटेशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन का, उस पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे नहीं करते। इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पर कुछ कहना अभी संभव नहीं है जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे नहीं आता। क्योंकि हिंदुस्तान में जब सिलेबस बनता है वो बनता है लाइब्रेरी ओरिएंटेड, जब वो क्लास में जाता है तब तक हो जाता है टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, जब वो टेक्स्ट बुक चलते चलते एग्जाम आते तब तक वो एक दुग्गी बनती है नकल करने के लिए, वो दुग्गी ओरिएंटेड हो जाता है।
और जब वो एग्जाम हो लेता है कुछ स्टेट्स में, फिर वो अप्रोच ओरिएंटेड हो जाता है, और जब वो पास होता है वो फिर डिग्री ओरिएंटेड हो जाता है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन गायब हो जाता है। तो उसकी यहाँ एक ज़रूरत है। उसको ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें बहुत सारे डिलिब्रेशन की ज़रूरत है, बहुत बड़ी। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ भी आप कर लीजिए जिसके जो मन में आए, इंग्लिश का वर्चस्व खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि इंग्लिश के नाम पर ही तो लोगों की रोटी सीख रही है। एक इन्होंने और बात कही है कि हम जो है क्लस्टर्स रखेंगे स्कूल्स के, वो ठीक है, कितना इम्प्लीमेंट होगा, कौन क्या करेगा। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि फीस को हम मॉनिटर करेंगे, और फीस मॉनिटर करने के लिए हम ग्रेडिंग करेंगे स्कूल्स की, इससे ज़्यादा वो फीस नहीं ले सकता। आजकल तो कहते पढ़ना पढ़ाओ, नहीं तो भागो, निकलो बाहर निकलो, इस तरह की भाषा शायद ये नहीं होगी। अब देखिए, ये ओवरऑल पॉलिसी दे के आए हैं, ये मैं एक समरी आपके सामने रख दी। इसके साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि हम लोगों को इसको खुद भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। एक बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि हम एडल्ट एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग से जोड़ के रखेंगे। एडल्ट एजुकेशन सरवाइव कर ही नहीं सकती अगर उसके पास लाइब्रेरी का सपोर्ट, तो उस लाइब्रेरी के सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरे कह रहे हैं कि हम जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आर्ट और कल्चर को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन आज तक गियर्सन के बाद कोई लिंग्विस्टिक सर्वे इसी जगह नहीं हुआ। नहीं पता कितनी लैंग्वेज मर चुकी हैं, कितनी लैंग्वेज मरने के कगार पे हैं, उन्हें किस किस ताकत की जरूरत है। और लैंग्वेज के साथ में कल्चर मरती है, कल्चर के साथ में एक विजडम मरती है, और जब ये सारी चीज़ें मरती हैं तो एक मानसिकता, एक राष्ट्रीयता भी मरने लगती है। तो जैसे मैकाले ने कहा था कि मैं ऐसी शिक्षा दे रहा हूँ अपने पिताजी को कि हिंदुस्तानी रंग से ढंग से हिंदुस्तानी होंगे, सोच से अंग्रेज होंगे, वो अब साफ होता दिख रहा है। तो दोबारा से उन्हें सोच से हिंदुस्तानी बनाने के लिए हम लोगों को लिंग्विस्टिक सर्वे की जरूरत है, ताकि हम मेजर मेजर सारी जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वही लैंग्वेज नहीं, दो चीजें होती हैं, एक बोली होती है, एक भाषा होती है। यहाँ तो हर 10 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें करना होगा। और तीसरी एक बात इन्होंने, हम टेक्नोलॉजी के यूज और इंटीग्रेशन को हम इसमें बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। ये तो कोरोना ने बढ़ा दिया है, टेक्नोलॉजी का एक कमाल है। मैं वर्धा में हूँ, आप चंडीगढ़ में, कोई कहीं है कोई कहीं, और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसका फेयर यूज हो, और हम इसे ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन होगी, सब कुछ ठीक है अगर क्वालिटी करती है। वहीं आ जाता हूँ, विदेश में 5 लाख करोड़ रुपए हर साल जा रहे हैं देश के, केवल एंड केवल क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए जा रहे। अन्यथा एक एक हम लोगों ने कभी ध्यान, इन्होंने कहा कि हम पूरा जो है 6% खर्च करेंगे जीडीपी का, आज तक 3.5-4 से ऊपर नहीं गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 8% जीडीपी का खर्च होगा। और 1% जीडीपी का कमाल मैं बता सकता हूँ, अगर हम 1% जीडीपी इंडिया की केवल बेसिक एजुकेशन पे खर्च कर दे, तो सारे देश में कोई गांव नहीं बचेगा और कोई बड़ा सा मोहल्ला नहीं बचेगा जहां एक अपना स्कूल ना हो और एक टीचर ना हो। 1% जीडीपी इतना काम कर सकती है। अगर हम 6% जीडीपी भी टच कर दें, जो कोठारी साहब ने कहा था, उस समय क्या होता, तो हम एजुकेशन को एक्सपोर्ट करते। अब हम 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपए खर्च के एजुकेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें एजुकेशन एक्सपोर्ट करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। आईआईटी में हमने काम किया, आईआईटी एक्सपोर्ट की एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने वहां जाके हिंदुस्तान के फेवर में लॉबिंग की, वहां से बहुत फॉरेन एक्सचेंज भेजा, उस समय हमें उसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत थी। बट हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं कि लोग यहाँ पढ़ने आए। एक समय था, हम चंडीगढ़ में बहुत साउथ अफ्रीकन बच्चे लड़के देखते थे, कुरुक्षेत्रा में देखते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए। इससे हमें विचार करना चाहिए कि उन्होंने आना अगर बंद किया है, अगर किसी चिड़िया ने, जो बरसात में, हम सर्दियों में चिड़ियाओं ने आना बंद किया, तो सरकार देखती है यहाँ आती थी कि आए, तो वहाँ देखते हैं यहाँ इन्हें खाना नहीं मिल रहा जो इनको चाहिए, इनके वातावरण में है, कोई इनको मारता है, उसका ध्यान देना होगा। अगर हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से आने वाले स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे, उन्होंने आना छोड़ दिया, इस पर विचार करना होगा। नहीं तो हम एक्सपोर्ट अगर एजुकेशन नहीं करेंगे, एजुकेशन इंपोर्ट ही करते रहेंगे, तो हम पैसा वेस्ट करते रहेंगे, लाभ कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरी बात इतने ध्यान से सुनी। और लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, छोटी सी बात है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ, गीता की में लिखा है, जो मेरे पास 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, कि जो मेरे पास गहरे से गहरा ज्ञान था वो तो मैंने आपको दे दिया, जो इस पे क्रिटिकली विचार करना, विमर्श एतद विशेषण है, इस पे अच्छी तरह से विचार करके यथेसी तथा कुरु, जो आपको अच्छा लगे वैसा करना,
तो जो मैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ सका वो मैं अपनी योग्यता के अनुसार आप लोगों के सामने रख दिया। उस पर आप विचार करिए और विचार भी क्रिटिकली करिए। और हाँ, एक बात और इसमें रह गई जो मैं टच करना चाहता था कि हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन्होंने गेट खोले हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अगर यहाँ आएंगी, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी एजुकेशन को खा जाएगी, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मानना है। यहाँ फॉरेन बैंक आए तो बैंक वालों ने हल्ला मचाया कि नहीं नहीं, हम नहीं, ये तो हमारा नाश कर देंगे, ये कर देंगे। उसका रिजल्ट जो है, हमारा बैंक वाला जो बदतमीजी से बात करता था वो तमीज से बात करने लगा। और फॉरेन बैंक थोड़े दिन यहाँ सस्टेन करे, वो यहाँ से भाग गए क्योंकि हम सुधर गए। इसी तरह से जब हायर एजुकेशन में यहाँ, लेकिन ये भी साथ साथ है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एक चीज समझ लीजिए, ऑक्सफोर्ड 1193 में स्टैब्लिश हुई थी। हम 1193 में जो है गुलाम हुए थे इसके मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1193 में जीत करके हिंदुस्तान पे कब्जा किया था। वहाँ 1193 में यूनिवर्सिटी, आज वो 800 साल पूरे कर गई यूनिवर्सिटी, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन आज भी टॉप 10 में है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों नहीं जिसने 100 साल पूरे कर लिए और वो टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड हो। इस पे विचार करना होगा, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ गीता का श्लोक दोहराते हुए, क्षमा याचना करते हुए, इति ते ज्ञानम आख्यातम, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ, इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ये जो मैंने आपको बातचीत कही है, जानकारी दी है, ये मेरे पास, मेरी समझ के अनुसार सबसे गहरी थी, was the deepest knowledge I had about। और विमर्श एतद अशेषेण यथेषि तथा कुरु, इस पे जो है, जो मैं कह रहे से अनुसरण मत करना। इसे ही क्रिटिकल वैल्यू वो कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारे यहाँ पूरी पॉलिसी में कहा हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। ये क्रिटिकल थिंकिंग कब डेवलप होती है? जब आप फ्रीडम देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करने की। तो भगवान कहते हैं विमर्श एतद अशेषेण यथेषि तथा कुरु, तुम इस पे अच्छी तरह से क्रिटिकली इस पे विचार करना और जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे ही करना। और अंत में गुरु अर्जन देव जी की लाइन जरूर कहूंगा। उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ बांधी, उसको 4 पाई पर रखा 1604 में, उन्होंने एक सेंटेंस किया, मैं ग्रंथानुकूल ग्रंथ जिन्हें होंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो क्रिटिकल थिंकिंग रखो और गुरुओं के आदेश को मानो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर देवी सिंह, आपने बहुत अच्छे से सिंपल शब्दों में इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम कोठारी साहब से लेके अब तक की। और इनफैक्ट आपने बिल्कुल ठीक बोला कि शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है वो विजडम को ट्रांसफर करना है। हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमको सोचने की शक्ति दे। और एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक पर्पस ये होता है कि जैसे आपने, आपके वर्ड्स में यूज करूंगी, पत्थर को तराशना। इसकी हमको बहुत जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बोला कि ड्रॉप आउट रेशियो को रोकना, तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने जो कुछ बताया वो बहुत अच्छा, सिंपल, सरल शब्दों में हम सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नेहा, आप क्वेश्चंस ले सकती हैं आप। there are not many questions, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ऑल द डॉक्टर्स, आपने बहुत सारे टाइटल्स दिए बुक के, बट देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन, टाइटल ऑफ द बुक दैट वाज साइटेड अबाउट द पॉलिसी टुवर्ड्स द एंड। वो तो एक, हाँ, वो पैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एपी श्रीवास्तव जी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे, उन्होंने लिखी थी 1980 में। उसमें ये जो एमफिल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काफी वो किया था कि ये ठीक नहीं है और इसका कोई लाभ नहीं होगा, किसी स्टेज पे छोड़नी पड़ेगी। और रादर हमने एक बैरियर सा क्रिएट करके यूनिवर्सिटीज में क्राउड बढ़ा दी और इसके अलावा इसका कोई पर्पज सर्व नहीं होगा। ये बात सहमत है। ओके, थैंक यू सर। सर, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट मेरे जो साथी हैं उन्होंने भी यही चीज़ बार बार रिपीट बोल रहे कि इट वाज टू द पॉइंट एंड इट वाज सेड टू अस ऑन आवर ओन लेवल, ताकि हम समझ सके क्या है एग्जैक्टली। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर खुशप्रीत सिंह टू प्लीज गिव हिज वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू नेहा। मैं ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਨੀਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 11:30 ਵਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank Thank you, you. Dr. Divi Singh. Thank you very much. Thank you, everyone. Only thanks goes to Madam Preeti. She forced me to deliver the lecture. I was not ready, but वो धक्के से रेल में I'm really grateful to you. Really grateful. Okay, thank you.